Good evening, my dear students, all prince and princess. So today we are going to take up question answers of lesson 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. I hope you have understood all the chapters and poems I have taught till now, and the figures of speech, the topic which we have taken detail. I hope all of you have understood. Students, when you please see the videos, please press the like button, and you can put your comment also, so that I come to know that you have understood it or not, because it is very difficult for me to know what is your problem, whether it is clear or not. So it is through your comments only, through your like button only, I come to know. But still, after so many times I am telling you, but you are not doing this. So please do this. And now I'll tell you how you have to do the question answers. See, first I'll take you to my tab. You have to take this icon, NCERT books. When you click on it, NCERT books, it will open like this. Then you go to class 10. Then after then, first flight, then Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. When you click here, it will come question answers discussion. You can open this. In this way, question answers will come on your screen. Okay, because all the students, they do not have refresher book, and I also personally think that refresher books are not important, because we are teaching you everything. So like this, question answers textual, these are the textual question answers. When you'll click on the first question, where did the ceremonies take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? So if you click here, you'll get the answer. The ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria, the Parliament House in New Delhi, the Rashtrapati Bhavan in New Delhi, the Supreme Court of India in New Delhi, and Madras High Court in Chennai are some examples of Indian public buildings that are made of sandstone. So these are the ceremonies, means रस्में कहाँ पर हुई थी? So they were Union Building of Pretoria में हुई थी. ये हमको याद कर लेना है. So I hope this is clear to you. Okay, so then we can move on to second question. That is this: can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? How 10th May is an autumn day? So when you click on it, you will get 10th May is an autumn day in South Africa because on this day there was the largest gathering of international leaders on South Africa soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. I have told you that this is autumn day. एक बसंत ऋतु का दिन क्यों है? क्योंकि इस दिन पे वहाँ पे सारे इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठे हुए थे. किस चीज़ के लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट democratic non-racial government. Clear? Then we'll take up the third question. At the beginning of the speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. Mandela एक human उसकी डिजास्टर की बात करते हैं जो मनुष्य के द्वारा त्रासदी फैलाई गई. व्हाट डज, इसका क्या मतलब है? एंड व्हाट इज़ द ग्लोरियस, और इससे क्या ग्लोरियस है? ग्लोरियस का मतलब प्रसिद्ध क्या चीज़ है, फेमस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स अबाउट. कौन सी उसकी बात कर रहे हैं वो? By human disaster, Mandela means to say that colored people have suffered a lot due to discrimination in the hands of white. कि जो colored लोग हैं उन्होंने बहुत सफ़र किया, यानी black people, they have suffered a lot due to discrimination, माने भेदभाव in the hands of white, सफ़ेद लोगों द्वारा. He considered it a great glorious human achievement. ये बहुत ही उपलब्धि है, बहुत ही एक प्रसिद्धि, एक मशहूर कर देने वाली उपलब्धि है. That a black person became the president of a country where blacks are not considered as human beings and are treated badly. तो उस देश का एक प्रेसिडेंट ही ब्लैक व्यक्ति बन गया जहाँ पर ब्लैक लोगों को एक इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाता था. ओके, देन व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? वो किस चीज़ के लिए उनको धन्यवाद कर रहा है? मंडेला फेल्ट प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज not too long ago the South Africans were considered outlaws. He thus thanked all the international leaders for having come to witness his investiture as president, since the event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. तो मंडेला जब अपने आप को प्रिविलेज माने अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे पाते हैं कि वो होस्ट कर रहे हैं, कि वो मेज़बान हैं उन नेशंस के, वर्ल्ड के, जो बहुत कुछ समय पहले साउथ अफ्रीकन्स को वो आउटलॉज कंसिडर करते थे, यानी कि कानून के बाहर समझते थे, उनको एक रेबल समझते थे. फिर वो थैंक करता है इंटरनेशनल लीडर्स को, सबको, कि वो आए और यहाँ पर विटनेस माने गवाह बने
इस इन्वेस्टर माने जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, जो वो एक प्रेसिडेंट बन के इस देश में अपने आप को काम में लगा रहे हैं, इस चीज़ के वो गवाह बनने के लिए आए। क्योंकि ये घटना क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है, एक विजय है। किस चीज़ के ऊपर? जस्टिस, न्याय, पीस, शांति और ह्यूमन डिग्निटी और मानव के सम्मान के ऊपर एक विजय है। तो आप सब लोग इसके गवाह बनने के लिए आए, इसके लिए वो उन लोगों को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें योर आंसर, आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। 3 और आपको आंसर मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, मंडेला फेल्ट ये है। फिर मंडेला थिंक्स इंटरनेशनल लीडर्स टू पोजेशन विद ब्लैक पीपल फॉर जस्टिस, ये भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप अपना आंसर भी लिख के भेज सकते हैं। ओके, व्हाट आइडियल्स माने आदर्श, डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या आदर्श वो सेट करता है अफ्रीका के फ्यूचर के लिए? ही सेट आउट द आइडियल्स, वो ये आदर्श करता है कि पॉवर्टी एलिविएशन, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, कि गरीबी को हटा देगा, अपने गरीबी जो लोगों में है उन सबको ऊपर उठाएगा गरीबी के स्तर से, और उन सबकी सफरिंग को, अपने लोगों की तकलीफ़ों को कम करेगा। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी, और वो ऐसे एक समाज की स्थापना भी करेगा, है ना, वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन। जो रेशियल का मतलब आपको पता ही है, रंग के आधार पे जो ओरिजिन, जो रंग ब्लैक एंड वाइट का जो भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन, उसके आधार पे या लिंग के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, मिलिट्री वाले लोग क्या करते हैं? देखो मैंने आपको पढ़ाया भी था ये, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज द लॉयल्टी, वो उसको सैल्यूट कर रहे हैं मंडेला को, और उसको प्लेज का ओथ ले रहे हैं अपनी वफादारी की। इसके पहले कुछ दिन पहले ही उनके संग कैसा था, उनको जेल में डालते थे वो लोग, लेकिन आज उनकी लॉयल्टी बदल गई है। द एटीट्यूड टुवर्ड ब्लैक हैड टेकन ग्रेट चेंज, इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड हिम, एटीट्यूड में, उनके स्वभाव में, व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है, और आज वो उसको अरेस्ट करने की बजाय उसको सैल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, वो वाई वर द 2 नेशनल एंथम सिंग, क्यों गाए गए 2 नेशनल एंथम? ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन 2 नेशनल एंथम वर सung, one by the whites and other by the blacks. This symbolized the equality of black and white. ये ब्लैक एंड वाइट की को बताता है कि दोनों बराबर हैं, दोनों ही नेशंस का महत्व बराबर है। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड, मैंने आपको बताया था फर्स्ट डिकेड में 20वीं सदी के शुरू के 10 साल में क्या हुआ, और 20वीं सदी के लास्ट के 10 साल में क्या हुआ। तो इसका आंसर है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन पैच्ड अप देयर डिफरेंट, पैच अप माने उन्होंने पूरे कर लिए, अपने डिफरेंस को ख़त्म कर लिया था, एंड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, पर लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था जिसमें वो वाइट जो थे वो डोमिनेट करने लगे। रेशियल डोमिनेशन माने कि रंग के आधार पर डोमिनेट करना, दूसरे को दबाना, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, यानी कि जो वहाँ के सफ़ेद लोग थे वो रंग के आधार पर अपने ही देश के काले लोगों को दबाने लगे, एंड दस क्रिएटिंग द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड इवन इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन, और उन्होंने एक बेस तैयार किया, उन्होंने एक नींव बनाई सबसे हार्शेस्ट, सबसे कठोर, सबसे क्रूर और इनह्यूमन, क्रूरतम सोसाइटीज़ की जो सब दुनिया ने जानी। तो फर्स्ट डिकेड में आपको पता ही है कि ये सिस्टम शुरू हुआ था रेशियल डोमिनेशन का, और लास्ट में क्या हुआ था, इन द लास्ट 20th century द प्रीवियस सिस्टम हैड ओवरटर्न फॉर एवर, और अभी अब ओवरटर्न हमेशा के लिए पलट गया, एंड रिप्लेस कर दिया गया बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके कलर और स्किन को रिगार्डलेस, उनके बिना महत्व दिए, उनके रंग को, उनके स्किन को ध्यान दिए बिना सबको बराबर अधिकार दे दिए गए, सबको बराबर आज़ादी दे दी गई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। What does courage mean to Mandela? For Mandela, courage does not mean the absence of fear, but a victory over. वो उसका कमी नहीं मानते कि डर की कमी होना वो नहीं है, बल्कि उसके विक्ट्री, उस पर विजय प्राप्त करना। According to him, brave man need not be fearless, but should be able to conquer fear. तो ब्रेव आदमी को डरने की जरूरत नहीं है कि निडर हो जाए, पर उसको उस पर डर पे जीत प्राप्त करनी चाहिए, यही उनका मकसद था। ठीक है, विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट, क्या नेचुरल है, लव करना कि हेट करना, है ना। फॉर मंडेला लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट, लव नेचुरल है ना, तो हेट से, नफरत से ज़्यादा। ठीक।
Next question. What twin obligation does Nelson Mandela mention? He mentioned twin obligations. First is towards family, parents, wife, children. पहली बताई थी मैंने आपको. और second obligation public, अपने देश के प्रति, people, community और country. ठीक है. What did being free man mean to Mandela as a boy and as a student? क्या मतलब है? How does he contrast this transitory freedom with the basic and honorable freedom? तो इसका आंसर बहुत सब आपको मैंने इसको बना लिख के समझाया था मैंने. लाइक एनी अदर किड, मंडेला ऑल्सो द फ्रीडम मेंट अ फ्रीडम टू मेक मैरी एंड एन्जॉय द ब्लिसफुल लाइफ. बचपन में एज अ किड माने तो बच्चे की तरह, वो मैरी माने एन्जॉय करना, अपने आप खुश करना, इधर उधर ब्लिसफुल लाइफ. वंस एनीबडी बिकम्स एन अडल्ट, जब वो अडल्ट हो जाते हैं, एंटिक ऑफ चाइल्डहुड लुक लाइक ट्रांजिटरी. और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको एंटिक दिखाई देता है. एंटिक माने पुरानी चीज़ दिखाई देती है. बचपन की आज़ादी उनको एक पुरानी चीज़ दिखाई देती है, एक ट्रांजिटरी, यानी कि जो टेम्पररी थी. बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटी इज़ वेस्टफुल फ्रॉम एन अडल्ट परस्पेक्टिव. अगर एक अडल्ट की परस्पेक्टिव माने निगाह से, नज़रिए से देखें तो बचपन की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ सब बेकार होती हैं. वंस यू आर अडल्ट देन someday you have to earn a livelihood to bring a bacon home. Then only you can get an honorable existence in the family and in the society. तो वो कहते हैं कि जब आप अडल्ट हो जाते हैं तो आपको कमा के लाना पड़ता है घर में, आपको घर में खाना कमा के लाना पड़ता है, तभी आप एक समाज में आप सम्मान पाते हैं, परिवार में सम्मान पाते हैं. तो इसका मतलब समझ गए आपको. एज अ स्टूडेंट, एज अ बॉय और स्टूडेंट आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एज अ बॉय वो खेतों में घूमना, नदी में नहाना और कॉर्न को भून के खाना, वो सब उनका था. एज अ स्टूडेंट रात को बाहर रहना, ये सब चीज़ें था. तो ये उनका बेसिक था, ट्रांजिटरी था. ये सब क्या था? ट्रांजिटरी फ्रीडम थी. और बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम क्या थी उनकी? जो अपनी कमाई को रखना, अपनी अर्न को, है ना, ये सब उसको आप कर सकते हैं. ठीक, ओके. डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री? क्या मंडेला सोचते हैं कि ऑपरेसर माने जुल्म करने वाला फ्री होता है? नहीं. वाई और वाई नॉट, दोनों आंसर आपको देने हैं. मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज़ फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेसर इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ऑपरेसर एक खुद कैद है, नफरत की उसमें ताले में खुद बंद है वो. हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, जो खुद ही एक घमंड और एक संकीर्ण मानसिकता में अपने आप को जेल में बंद किए हुए हैं. तो यानी कि जो नफरत करता है वो भी अपने आप को एक जेल में बंद किए है. वो जेल किस चीज़ की बनी है? प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस की. ही फील्स दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. दोनों ही, यातना देने वाला और यातना सहने वाला, दोनों ही मानवता उनसे ले ली गई है, उनसे मानवता चुरा ली गई है, ऐसा वो मानते हैं. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? इतने सारे लोग क्यों आए थे इनाग्रेशन में, हैं? और इससे क्या ट्रायम्फ माने किस चीज़ की विजय प्राप्त होती है? द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स वॉज अ गेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी. गेस्चर माने होता है एक उनका एक पेश करने का तरीका. अपने आप को वो ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग एक पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरा इंटरनेशनल समाज जो है वो सॉलिडेरिटी माने एकजुट हैं टू द आइडिया एंड ऑफ अपार्थाइड. माने एपार्थाइड की जो हमारी पॉलिसी है उसके खिलाफ है हम सब, और हम सब एकजुट हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं. ये दिखाने के लिए इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल लीडर्स आए थे. इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर ईवल, और ये बुरे के ऊपर अच्छाई की जीत भी दिखाता है. द ट्रायम्फ ऑफ आइडिया ऑफ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और एक टॉलरेंट सोसाइटी यानी ऐसा समाज जो सहे, जो सबको सहन करता है, जो सब चीज़ों को साथ में लेके चलता है. जैसे कि हमारा इंडिया है, हम सभी को साथ में लेके चलते हैं. हमारे यहाँ कोई धर्म को विशेष वो नहीं दिया जाता, कोई किसी को कुछ नहीं किया जाता, सब एक साथ चलते हैं उसी तरह से. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of those all African patriots who had gone before him? मंडेला का क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि वो सम ऑफ है? सम माने टोटल है. जितने भी अफ्रीकन पेट्रियट, जितने भी देशभक्त हुए, उन सब का एक निचोड़ है. वो ये चीज़ क्यों कहते हैं? मंडेला वॉन्ट्स टू पे, क्योंकि वो अपनी ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन पीपल को हु हैड सेक्रीफाइस द लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम. ही फील्स दैट ही इज द सम ऑफ ऑल दोज African patriots who had gone before him, because these heroes of yesterday years had paved the path of cooperation and unity for him.
वो कहते हैं क्योंकि इन सब लोगों ने, जितने भी पहले भी आज़ादी के जो देशभक्त थे, उन सब ने, वो हीरोज़ थे कल के, और उन्होंने आज के लिए ये रास्ता, पाथ बनाया है। पेव माने बनाया है, रास्ता किस चीज़ का? कॉपरेशन एंड यूनिटी। एक कॉपरेशन यानी आपस में सहयोग, और यूनिटी एकता का रास्ता बनाया है। Therefore he got the support of his people to come to power to bring equality for his own. इसीलिए आज उनको ये सपोर्ट मिला है अपने लोगों का कि वो इस पावर में आए हैं और वो लोगों को अपनी समानता देंगे। मतलब आज जो वो जिस पद पर आए हैं, वो पद, वो निचोड़ है सब अफ्रीकन पेट्रियट्स का, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग सब एक हुए, हम सब में यूनिटी आई, सहयोग की भावना आई। पहले सारे अफ्रीकन्स बिखरे हुए थे, लेकिन जो राष्ट्र, जो देशभक्त थे, उन्होंने सब लोगों को मन में ये जगाया कि हम सब एक हैं, हम सबको एक होकर रहना चाहिए, और इसीलिए आज नेल्सन मंडेला को लोगों ने प्रेसिडेंट बनाया है। क्लियर? वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर? यस। हाउ डज नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल? इसमें डेप्थ ऑफ ऑपरेशन माने जितना आपको कुचला जाता है उतना ही आपका चरित्र उभर के आता है, ये चीज़ है ना। जैसे एक्शन टू रिएक्शन है ये, कि जितना डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, जितना डेप्थ माने गहराई, ऑपरेशन माने आप पे क्रूरता की जा रही है, जितना आपको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, उतना ही आपका चरित्र, हाइट ऑफ कैरेक्टर आपका बढ़ रहा है। इसको बिल्कुल एग्री करना चाहिए हमको कि हर एक के संग ये होता है। नेल्सन मंडेला illustrate this by giving example of great heroes of South Africa who sacrificed their life in the long freedom struggle. जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान किया, उन सब का वो एग्जाम्पल देते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ड्यूरिंग अवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वर गैलेक्सी माने पूरे तारों की एक बारात थी, इतने सारे लीडर्स थे, जिसमें जो ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सो मैनी मैन ऑफ हाई कैरेक्टर। इसीलिए हमारे देश में ब्रिटिश रूल ने जब बहुत हम लोग को कुचला, बहुत ऑपरेस, अत्याचार किए हमारे ऊपर, तो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े देशभक्त बने। इफ़ वी कंपेयर दिस विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया इज़ हैविंग टुडे, देन नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट। और इससे अगर हम इंडिया की तुलना करते हैं तो बिल्कुल सही है। तो हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? कैसे मंडेला की फ्रीडम के प्रति जो एक समझदारी थी वो एज और एक्सपीरियंस के साथ चेंज हुई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंडेला पहले एक बच्चे की तरह फ्रीडम को देखते हैं, फिर वो एक यंग बॉय की तरह देखते हैं, स्टूडेंट की तरह देखते हैं, फिर एक वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरह देखते हैं, और लास्ट में वो एक अडल्ट की तरह देखते हैं। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ये, फिर से एक बार इसको समझ लेंगे। विथ एज नेल्सन मंडेला रियलाइज दैट ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। वो बोलते हैं ना उनकी ऑब्लिगेशन है अपने घर वालों के प्रति, लेकिन दूसरी ऑब्लिगेशन उससे बड़ी है, किसके प्रति? अपने देश के प्रति, अपने लोगों के, कम्युनिटी के प्रति। अब एज अ बॉय वो क्या सोचते हैं? मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम बिकॉज ही थॉट ही वॉज बॉर्न फ्री। क्योंकि जब वो एक बच्चा थे उन्हें लगता था वो तो फ्री पैदा ही हुए हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? फ्रीडम। ही बिलीव एज दैट लॉन्ग एज यू ओबेड हिज फादर, अपने माता पिता का कहना मानते हैं। अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब, अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानते हैं। ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर। उनके लिए आज़ादी उतनी सीमित थी कि हम अपने पिता का कहना माने, कबीले का कहना माने, बस हम आज़ाद हैं, हम तो फ्री पैदा ही हुए हैं। ही हैड सर्टेन नीड्स एज अ टीनेजर, ठीक है, उनको टीनेजर के रूप में, टीनेजर माने जिसकी उम्र 19, जिसके पीछे टीन लगा हो, 19 तक टीन आता है ना, 13 से लेके 19, ठीक है। ही हैड सर्टेन नीड ऑफ टीनेजर एंड सर्टेन नीड ऑफ यंग मैन। एक टीनेजर के रूप में उनकी कुछ ज़रूरतें थी और एक यंग मैन की ज़रूरतें थी उनकी, तो वो पूरी हो रही थी ग्रेजुअली। लेकिन जैसे जैसे वो ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, पर बाद में उनको एहसास होता है कि वो स्वार्थी थे। ही स्लोली अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट इज़ बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक। बाद में जब वो थोड़े बड़े हुए, जब अडल्ट हो गए, तब उनको समझ में आया कि केवल उन्हीं की फ्रीडम को ही कर्टेल माने काटा नहीं, कटौती नहीं की जा रही है, बल्कि सभी काले लोगों की फ्रीडम को काटा जा रहा है। इट इज़ आफ्टर अटेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग दैट ही डेवलप्स अ हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। और जब उनमें ये समझ आती है तो उसके बाद ही उनके लिए, अपने देश के प्रति आज़ादी के लिए उनके मन में भूख जागती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ बॉय, एज अ यंग बॉय, एज अ टीनेजर उनकी क्या क्या आज़ादी चाहिए थी, वो सब उनको मिलती थी और वो उसमें खुश थे। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता लगा कि उनके देश के सभी काले लोगों को आज़ादी नहीं मिली है, और वहाँ उनको ये भूख पैदा हुई आज़ादी की। क्लियर? हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? कैसे उनकी चेंज हुई? ठीक, यह मंडेला रियलाइज in his youth that it was not just his freedom that has been curtailed but the freedom of all black.
केवल उन्हीं की नहीं, सबकी सबकी कटौती हुई है। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और उनकी आज़ादी की भूख अपने देश की आज़ादी की भूख में बदल गई। दिस डिज़ायर ऑफ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म इनटू वेरियस सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, और ये डिज़ायर, ये इच्छा ने उनको एक नॉन रेशियल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया इनटू वर्चुअस एंड सेल्फ, और वो एक वर्चुअस और अपने आप को स्वयं त्याग करने वाले मनुष्य में बदल गए। दस ही जॉइंट, फिर उन्होंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी एंड चेंज हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड मैन इनटू बोल्ड। मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ों में वो चेंज हो गई, फ्राइटेंड मैन से बोल्ड मैन में हो गए, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से एक विद्रोही में चेंज हो गए। तो वो सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब ये पीछे जो आपके एक्सरसाइज दिए रहते हैं वो हैं, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेशन। जैसे आपको मालूम है कि हम सफिक्स लगा के, सफिक्स माने क्या होता है, जो वर्ड्स हम पीछे लगाते हैं, ठीक है। जैसे TION, कौन से वर्ड्स होते हैं सफिक्स, TION, ठीक है। तो आप जैसे इसको समझ सकते हैं कि TION, SION, ये सब वर्ड्स हम लगा के अपने आप को नाउन बनाते हैं। नाउन फॉर्मेशन आपके कोर्स में है, ये कॉम्प्रिहेंशंस में पूछा जाता है, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का कई बार आ जाता है कि इन वर्ड्स को नाउन में चेंज करिए। तो कैसे नाउन में चेंज करना है, आपको पीछे इनके वो लगाना है, सफिक्स लगाना है। जैसे कंट्रीब्यूट का क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन, क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो आप लिख सकते हैं TION, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। क्लियर। असिस्ट का असिस्टेंस, ठीक। और सीम ऑफ रोसा पार्क्स सीम स्ट्रेस, असिस्टेंस हो गया ये, ANCE। फिर इसी तरह से सब्जुगेट का सब्जुगेशन, ठीक, ION लग जाएगा पीछे। ह्यूमिलेट का ह्यूमिलेशन, ठीक। इम्प्रेजन का इम्प्रेजनमेंट, ठीक। रेजिस्ट का रेजिस्टेंस। क्लियर। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को करते चलेंगे। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कैसे खोलना है इसको। जब आप NCERT बुक खोलेंगे क्लास 10 नेल्सन मंडेला क्वेश्चन आंसर्स एंड डिस्कशंस, और आप इसमें ऐसे करके इसको अपना बैक करते जाएंगे, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आप इसमें से पढ़ के अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए सब आंसर लिखे हुए हैं। कंट्रीब्यूट का क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। असिस्ट का असिस्टेंस, ठीक है। सब्जुगेट का सब्जुगेशन। इम्प्रेजन का इम्प्रेजनमेंट। ह्यूमिलेशन। इस तरह से और आंसर्स भी हैं और इनको हम करेंगे, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन आंसर्स आर ऑल क्लियर टू यू एंड वी विल मीट वेरी soon, I hope in July, and before that you please keep studying and subscribe the channel. Okay, have a nice day.